Acharya Ravidev Gupta ji and friends. The Universe of Spirituality Group cordially welcomes you all to the fifth and the last of the series of 5 lectures that Honorable Ravidev Gupta ji has kindly agreed to deliver on Swami Dayananda Saraswati's profound book, Satyartha Prakash, meaning the light of truth. Just as a background, the first 4 lectures covered the following. On June 14, in an introductory overview, Ravidev Gupta ji talked about Satya Prakash's call to revive Vedic wisdom and rational thought. He noted that Satyartha Prakash rejects superstition, casteism, and ritualism. Here, Satyartha Prakash and Dayananda Saraswati also advocates monotheism, universal brotherhood, and scientific spirituality. The second lecture on June 28, Gupta ji covered ethics and dharma, that is chapters 10 and 6. Those define righteous conduct, achar, how the achar should be done, and that those chapters warn against immoral actions, anachar. Those chapters promote mano dharma, a universal moral code beyond sectarianism. And Satya Prakash encourages Vedic self-regulation guided by Shrutis, Smritis, and Rishis. These 3. The third lecture was on July 12 on chapters 2 and 3. And those chapters talk about Vedic parenting from conception to early childhood, rooted in purity and spiritual science. And it talks about education as a sacred duty, both society and parents responsible for that. It talks about Gurukul system, which offers holistic experiential learning, and education, that emphasizes moral, intellectual, and spiritual development. The fourth lecture was on July 26, and that was on marriage and renunciation. That lecture talked about marriage as a sacred duty, not a contract. It promotes ethical spouse selection and social reform, very important at this time when the family system is breaking down in many countries, including in India. It talked about life stages, 4 life stages, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyasa, and their importance. But when it comes to Vanaprastha and Sannyasa, it talks about renunciation. And renunciation that is grounded in truth, compassion, and Vedic devotion. The message here is that renunciation must become the foundation of one's life, which should be one of the duty and learning and not impulsive or escapist. Renunciation is not escapist, but is out of duty, out of learning, out of understanding, out of maturity. Yeah. And in Vanaprastha, one should withdraw from material comforts, social entanglements, while in Sannyasa, one should have total detachment, devotion to truth and Vedic wisdom, non-violence, celibacy, and compassion. So important. The last lecture is very important and talks about Om as the supreme name of one formless, omniscient God. See, Dayananda Saraswati always said that Devatas are natural forces, not deities. They are attributes of God. Idol worship is a misreading of Vedic texts. True spiritual progress lies in communion with the Supreme Being. And that is the focus of yoga, and Patanjali Yoga also talks about Ishwar Pranidhan. The sacred syllable Om holds a profound place in both Vedic and Upanishadic traditions as a sonic embodiment of the formless, omniscient, and eternal Supreme Being. And what Upanishads call it as Brahman, So this is there will be a lot more details about this concept of Om, and Dr. Gupta ji will talk about it. I have already introduced Gupta ji in earlier lectures.
what is important here is that he runs so many programs. He sitting in Delhi, he is engaged in so many philanthropic institutions. One is Ekal Vidyalaya Foundation of India, and he also runs various Vedic Gurukulas. There are 1,000 Gurukulas in India. There are a few of them are self-reliant, but some of them require funds. They struggle to survive, and they need support. Dr. Gupta ji is also involved in Hindu Punarutthan Sangha Trust. He also runs Dakshin Delhi Ved Prachar Mandal. He has also an institution called Veda Samsthan, an institution of promoting research development in Vedic literature that elicits similar financial Vedic literature, and they also need financial assistance. So there is one more activity. There is Punarjagran Samiti, and these activities also are done for general communities, also slum dwellers communities. They are all taking place in Delhi, in and around Delhi, and 70 schools. They teach tailoring, computer training, skill development centers in Delhi. And each center needs sum of rupees 1.5 lakhs per annum, serving approximately 30 children each center. So Gupta has asked us to make appeal to all of us to help him in these activities, spread the message, mobilize these activities. Now, how to channel these funds, etc., we are discussing. But there is an institution here in United States, and India also one can find. We have India IDRF, India Development and Relief Fund, and we channel funds to India through that fund. Because we have to meet the rules and regulations of Government of India on giving international donations. But at this time, we just want to make appeal that those who are interested in support, you can contact Ravi Gupta ji directly. He will give his phone number at the end. So with that, about Gupta ji, he is president of Dakshin Delhi, as I said before, Veda Prachar Mandal. It's a federation of 50 Arya Samaj units in South Delhi. It is engaged in the propagation of Vedic philosophies, as well as he's also General Secretary of Delhi-based Veda Samsthan. It is a research institute in Vedas. Gupta ji is also Kathakar or Vedic scriptures on Vedic scriptures and epics such as Ramayana and Mahabharata. He is president of Ekal Vidyalaya Foundation of India, and through that he serves providing free education to children. There are 1 lakh Ekal Vidyalayas in India. Gupta ji, in his capacity as the chair of Hindu Punaruthan Sangha, works on making Bharat as a self-reliant Rashtra. He governed by some Sanatan traditions. He spreads those messages. Professionally, Arya Gupta ji is cost and management consultant, chairperson of a Venus group of companies that provides technologies and materials to the construction industry. This is a brief introduction, but what is more important is the various activities for social development that he does, and he needs support, and we will provide some through our organization, but you are welcome to contribute. Gupta ji, I think with this kind of brief appeal and your introduction, the floor is yours. Thank you. You may want to add some words which I might have missed, Gupta ji, and then you can begin. Yeah, thank you. Dhanyavad, Ramesh Bhai Sahab. I'm really grateful to you for the opportunity that you have given to me for sharing my views with my friends who are present over here. And I find that most of them have been very regular in listening to all the previous 4 lectures. And probably as per the schedule, this is going to be the last lecture unless we decide to extend it further. Yeah. मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मेरे मित्र सतीश नागपाल जी और सुदेश कुमार शर्मा जी हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों ने
महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जानने की इच्छा रखी है और मैंने भी अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि जितने भी चैप्टर्स जिनको सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने समुल्लास कहा है, उन समुल्लास के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी दूंगी। अभी तक हमारे जो 4 लेक्चर हुए हैं उसमें 7 चैप्टर्स, हमारे 5 चैप्टर्स पहले क्लियर हो चुके हैं और 2 आज हमको लेने हैं। इसके बाद भी 7 रह जाएंगे जो जनरली थोड़े जरा क्लिष्ट हैं तो लोग उनको कम पढ़ते हैं, लेकिन जितने हमारे लिए जीवन उपयोगी हैं और बहुत आवश्यक हैं वो हमने लगभग सब ले लिए हैं और बाकी शेष आज हम 2 ले लेंगे। हमने पिछले लेक्चर में गृहस्थ आश्रम के बारे में चर्चा की थी। तो महर्षि दयानंद ने हमारे इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम की चर्चा की है, गृहस्थ आश्रम की है, और उसके बाद में जो 2 आश्रम हमारे शेष रहते हैं भारतीय संस्कृति में, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। आज मैं ये जो 5th चैप्टर है उसके अंदर में वानप्रस्थ और संन्यास विधि, उसके बारे में सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं सभी अपने श्रोताओं को कि मैं जो कुछ भी आपके सामने रख रहा हूँ वो केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती की अपनी जो लिखी हुई पुस्तक के अंदर है वही मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मेरा अपना कोई ओपिनियन या मेरा उसमें कोई नैरेटिव ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में कहीं थोड़ा सा एलाबोरेट करके उस पर क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो दैट आई सर्टेनली डू, बट वट एवर आई एम रिप्रोड्यूसिंग इट फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, that is an ageless scripture written by Maharshi Swami Devdayananda. Now we come to the 5th lecture, Vanprastha. Vanprastha, as everybody can understand and everybody knows it, कि जब गृहस्थ आश्रम में हमारी सारी दायित्व पूरे हो जाते हैं तो लगभग हमारे जीवन के 2 क्वार्टर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में जो हमारे 2 एक्सपेक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ में क्वार्टर बचते हैं, तो उसके अंदर में तीसरा क्वार्टर वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ का अर्थ है जो अभी तक गृह में रह रहा था तो वो गृहस्थ था, अब वो गृह छोड़ के, गृह का त्याग करके वनों में जाके रहे, तो जो वन में जाके रहेगा वो वानप्रस्थी कहलाएगा। तो महर्षि दयानंद ने लिखा है कि मनुष्यों को ये उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थ में जाएं और उसके बाद वानप्रस्थ और फिर सन्यासी होंगे। ये अनुक्रम से आश्रमों का विधान है। उसके लिए उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो साथ में वो दिए हैं कि ये इसके सिम्टम्स कब आपको लगते हैं, तो बड़े लाइटर वेन में भी है और एक इम्पॉर्टेंट भी है। उन्होंने कहा जब सिर के बाल सफ़ेद हो जाएं, सिर के बाल सफ़ेद हो जाएं, हमारी स्किन थोड़ी ढीली होने लगे, और एक बड़ा प्रैक्टिकल उन्होंने कहा जब मेरे बेटे का भी बेटा हो जाए, यानी घर में मेरा ग्रैंडसन भी आ जाए, तब समझ लिए दिस इज द हाई टाइम टू लीव योर होम, हाउस होल्ड। तो फिर आदमी को उसमें लिखा है उन्होंने कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखें और वन में जाके कहीं अपने बसने की व्यवस्था करें। अब बसना जो है तो वो कि बिना किसी उद्देश्य के नहीं है, देयर हैज टू बी ए पर्पस फॉर इट एंड देयर हैज टू बी ए मेथोडोलॉजी एज वेल। तो जिसका उन्होंने सजेस्ट किया है कि स्वाध्याय और पढ़ने पढ़ाने में हम नित्य युक्त होने का प्रबंध करें। स्वाध्याय का अर्थ है सेल्फ स्टडी। जनरली लोग अपने बिजी टाइम में गृहस्थ आश्रम में ये ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो ऋषि दयानंद ने स्पष्ट किया कि वानप्रस्थ लेने से पहले ये संकल्प लेना है कि मैंने रोज स्वाध्याय अवश्य करना है और जो कुछ मैंने पढ़ना है उसे कुछ लोगों को पढ़ाना भी है। विद्या आदि का जो दान देने हारा है, सब पर दयालु है, मित्रवत है, और अपनी इंद्रियों का दमनशील होकर, इंद्रियों का दमनशील का अर्थ है जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, उनको शरीर सुख के लिए अधिक प्रयत्नशील होकर आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता न करते हुए, मतलब ये तो ध्यान रखे कि मेरे शरीर का सुख जो है, मेरा स्वास्थ्य बना रहे, इसके बारे में तो चिंता करे, लेकिन साथ में ये कहा कि जो उनके ऊपर में डिपेंडेंट हैं और इसके अलावा जो अन्य अन्य जितनी भी रिश्तेदारियां हैं उनके अंदर अब ज़्यादा ममता नहीं रखे, ये मान के चले कि दिस इज द टाइम टू लीव। तो उन ना करते हुए
फिर आप एक संकल्प लें अग्निहोत्र के माध्यम से, अर्थात यज्ञ के माध्यम से। एक तो संस्कार है वानप्रस्थ का, उसके अंदर में दीक्षित होके ये व्रत ले लें। व्रत लेने का मतलब ये मन में एक रिजोल्यूशन ले लें। वन हैज टू रिजॉल्व कि मैंने इसके बाद में केवल सत्याचरण करना है। जो मेरा व्यवहार होगा वो केवल और केवल सत्य होगा। मेरी वाणी में भी सत्य होगा, मेरे व्यवहार में भी सत्य होगा। और जो भी असत्य है मैं धीरे धीरे उसको छोड़ने का अभ्यास करता जाऊंगा। और अल्टीमेटली एक ऐसी स्थिति आए कि मेरे जीवन में सत्य कुछ ना रहे। तो इतना कह के बड़ी श्रद्धा से प्राप्त होने का विचार करके वानप्रस्थी हो गए। तो वानप्रस्थ के बारे में और बहुत ज्यादा डिटेल मुझे आपके साथ में शेयर करने की आवश्यकता नहीं, जितना जरूरी है मैंने आपको बताया। उसके अंदर में एक बात उन्होंने अवश्य जरूर कही है। उन्होंने कहा कि जब किसी भी व्यक्ति को वानप्रस्थी लेना हो तो वो उसको अपनी इच्छा से वॉलेंटरीली लेना चाहिए। अगर किसी को जबरदस्ती लेना पड़ता है, जैसा कि आजकल हम देखते हैं लोग ओल्ड एज होम में जाते हैं, अपनी मर्जी से भी जाते हैं। बहुत से लोग उनके बच्चे उनको जबरदस्ती छोड़ के आते हैं। जो जबरदस्ती छोड़ के आते हैं वो तो भारतीय संस्कृति नहीं है, विकृति है। और मेरा ख्याल है केवल भारत नहीं, ये पूरे दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है। और अधिकांश लोग विदेशों में भी इस कष्ट का अनुभव करते हैं कि उनकी संतान उनको अपने साथ रखना नहीं चाहती है। शायद विदेशों में ये एक नॉर्म भी है, इसलिए उनको शायद इतना कष्ट ना होता हो। लेकिन भारत में अगर किसी माता पिता को बाध्यता हो के वनों में या घर से बाहर रहना पड़ता है तो कष्ट होता है। तो ऋषि दयानंद ने ये परामर्श दिया कि हमको जो काम करना है वो स्वेच्छा से करना चाहिए। अगर स्वेच्छा से करते हैं तो हमको फिर कष्ट नहीं होता है। और वही काम हमको जबरदस्ती में मजबूरी में करना पड़े तो कष्ट का अनुभव बहुत ज्यादा होता है। तो ऋषि दयानंद ने ये वानप्रस्थ के संकल्प के लेने में यही एक परामर्श दिया कि आप स्वेच्छा से अपने मन को तैयार करें। योर माइंड सेट शुड बी कंडीशनड एज सच। इसके बाद में जो सन्यास है उसके लिखा है उन्होंने कि आयु का ये चौथा भाग है। चौथा भाग का मतलब फोर्थ क्वार्टर। तो उसमें क्या करना है, पहले तो आपने केवल अपने जो निकट संबंधी हैं, क्लोज रिलेशन है, उनको छोड़ा। और अब अगर सन्यास हो गया तो इट इज ए सॉर्ट ऑफ ए रिनंसिएशन नाउ। आपने जितने भी अपने संगी साथी हैं, मित्र हैं, उन सब का एक तरह से मोह छोड़ के, और जिस स्त्री को वानप्रस्थ में उन्होंने कहा था पत्नी को आप अपने साथ रखें, सन्यास में यह आदेश है कि अब उस स्त्री को अपने पुत्रों के पास भेज दें। अब तक आपने उसकी सुरक्षा की है, अब उसकी सुरक्षा का दायित्व अपनी संतान को दें। और उसके बाद में निश्चिंत होके, एक शब्द लिखा है उन्होंने, परिव्राट होकर। परिव्राट होकर सन्यासी हो जाए। ये जो परिव्राट शब्द है ये इट इज एकिन टू सम्राट। जैसे राजा अपने राज्य का सम्राट होता है, ऐसे सन्यासी पूरे संसार का परिव्राट होता है। अपना घर छोड़ देता है, सारे उतने उसके जितने भी उसके पास में बिलोंगिंग्स है, फिजिकल और रिचेज, उन छोड़ के उनको सबको छोड़ता है। और आश्चर्य क्या होता है कि जैसे ही वो सब कुछ छोड़ता है तो उसको लोग स्वामी जी कहने लगते हैं। कितना पैराडॉक्सिकल है। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो स्वामी है, और जिसके पास सब कुछ है वो स्वामी नहीं है, वो केवल गृह स्वामी है। तो आपको गृह स्वामी से वानप्रस्थ गए तो एक अभ्यास हुआ, वो ट्रेलर था, कंडीशनिंग थी। और संन्यास लेना ये हर एक के लिए संभव तो नहीं है, लेकिन परामर्श तो शास्त्रों में यही है कि इस प्रकार से सन्यासी ले। उन्होंने सन्यासी के लिए बताया कि सन्यासी के विशेष धर्म क्या है। उन्होंने दूसरी ये कहा है कि लोक में प्रतिष्ठा। हर आदमी को ये मन में इच्छा होती है कि मेरी संसार के अंदर में बहुत प्रतिष्ठा हो, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो, बहुत सम्मान मिले मुझे, मंचों पे बुलाया जाए, मालाएं पड़े, ये सब जो है इसको लोकेशना कहते हैं। उन्होंने कहा सन्यासी को ये सब छोड़ना होगा। लाभ, धन, भोग और पुत्र आदि के मोह से अलग होके तो सन्यासी को क्या करना है, केवल मोक्ष प्राप्ति के साधन में लगे रहना है। और सन्यासी भिक्षुक होके अपने भोजन की व्यवस्था करे, ये उसके लिए एक आदेश है। उसकी अपनी कमाई नहीं होनी चाहिए, अपने परिवार से भी कुछ लेके जाने वाला विषय नहीं है। वो भिक्षुक होके समाज के कृपा पात्र बन के, समाज के उनके उनका जो सौजन्य है उस सौजन्य को स्वीकार करते हुए
और भिक्षुक के पीछे एक मनोवृत्ति है कि जब कोई भी आदमी अपने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाता है, तो एक हाथ फैलाना तो मजबूरी में होता है, एक ये सन्यास धर्म के कारण हाथ फैला रहा है। तो इसके अंदर में कोई डिग्निटी तो हमारी गिरती नहीं है, लेकिन हमारा अहंकार जरूर खत्म होता है। आदमी अरबपति भी है, लेकिन वो भोजन के लिए किसी के परिवार पे जाके याचना कर रहा है, भिक्षाम देही, तो समझ लीजिए कि उसने अपना जो उसका ईगो था वो सारा का सारा उसने छोड़ने के बाद में हाथ फैलाया। तो उन्होंने कहा भिक्षुक होके ही रात दिन उसको मोक्ष प्राप्ति के साधन में लगना है। उसके लिए विशेष धर्म क्या है कि वो पृथ्वी पे चलते हुए बजाय सीधा देखने के पृथ्वी पे नीची दृष्टि करके चले, लोअर प्रोफाइल। अहंकार का जब तिरोहित करना है तो फिर अहंकार तिरोहित करने का तरीका ही यही है कि आदमी जो है वो नीची दृष्टि रखे, सामने हर व्यक्ति से आंख मिला के बात करने की आवश्यकता नहीं। फिर उन्होंने रिपीट किया कि सत्य का ही ग्रहण करे, असत्य को छोड़ता जावे। जितने भी सब संसार के अंदर प्राणी मात्र हैं उन सबको अभयदान देके उनको ये अपनी ओर से एक आश्वासन दे दे कि अब मेरी ओर से किसी को भी कोई हानि होने की आशंका नहीं है, तब घर निकले। मान अपमान से ऊपर होकर यदि कोई सन्यासी पर क्रोध भी करे तो सन्यासी का ये कर्तव्य है कि अपने निंदा करने वाले, अपने ऊपर क्रोध करने वाले के ऊपर भी पलट के उस पे ना उसकी निंदा करे ना कभी क्रोध करे। इसका मतलब यह है कि इतना वैराग्य हो और इतना मन उसका शांत हो कि किसी से भी किसी के प्रोवोकेशन से प्रोवोक ना हो, और बड़े शांति से उस व्यक्ति को उसका उत्तर दे और उसी को उसकी सज्जनता से शालीनता से उत्तर देना, ये सन्यासी का धर्म है। मानने में बड़ा कठिन है लेकिन व्यवहार में तो ये आदेश है। साथ में कहा कि धर्म और विद्या के बढ़ाने के उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। कहा जाता है ना कि रमता रोगी और बहता पानी हमेशा शुद्ध रहता है। तो इसलिए स्वामी जी ने भी कहा कि सन्यासी को एक स्थान पे बहुत दिन ठहरना उचित नहीं है, फिर उसको मोह उत्पन्न होने लगता है। आजकल तो हम ये देखते हैं जितने भी हमारे सन्यासी धर्माचार्य हैं बड़े बड़े मठ बना के स्वयं गृहस्थियों की भांति ही अपने घर में रहते हैं और कुछ थोड़ा बहुत प्रवास भी करते हैं। सन्यास धर्म का ये अवहेलना है। लेकिन जो वैदिक परिस्थिति है, एक दो तीन बात इसमें और लिखी है कि सन्यासी को यज्ञोपवीत धारण करने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो सब प्रकार के कर्मों से मुक्त हो गया है, ऋणों से मुक्त हो चुका है। अब उसने जो ऋण उतारने थे वो ऋण का भार तो वो अपने वानप्रस्थ तक उतार के आ गया। अब उसको चोटी रखने की आवश्यकता नहीं है, उसके बजाय क्या करना है, उसको अपना केश सारा सिर जो है ये मुंडवा के रखना है, नख दाढ़ी मूछ इन सबको साफ रखना है। सुंदर उसके पात्र होना चाहिए, एक दंड होना चाहिए जिसको बोलते हैं धर्म दंड, और साथ में कमंडल और काषाय वस्त्र मतलब भगवे वस्त्र धारण करे। ये उसके जीवन के लक्षण हैं। फिर उन्होंने बताया सन्यासी ग्रहण की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता के लिए उन्होंने एक इसके अंदर में क्रेडिबिलिटी की चर्चा की है। उन्होंने कहा जैसे मेरे सिर में शरीर में हमारे सिर होता है, ये सबसे ज्यादा पूज्य होता है। हम तिलक भी लगाते हैं तो उसी पे लगाते हैं। तो हमारा सिर उठा के भी हमको चलना होता है, गर्व से तो सिर उठा के चलते हैं। उन्होंने कहा जैसे हमारे शरीर में सिर है उसी प्रकार से समस्त आश्रमों में अगर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है शीर्ष पे तो वो संन्यास आश्रम है। उन्होंने कहा सन्यासी तो वेदोक्त धर्म के उपदेश से, जैसा वेदों में लिखा है उस धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति बढ़ाकर लाखों व्यक्तियों की सेवा करेगा। तो अभी तक तो उसने गृहस्थ में अपने परिवार की सेवा की थी, वानप्रस्थ में जाके समाज के बहुत से लोगों की और सेवा करने का उसने संकल्प लेके वहां पर प्रयास किया होगा। लेकिन सन्यासी हो गए तो उसको जन जन का वो करना है, उत्थान करना है। तो लिखा कि सन्यास जब लेते हैं तो उससे लाखों आदमियों के धर्म की रक्षा होती है। एक कहावत है कि जब वसंत ऋतु आती है तो सारी संस्कृति सुधर, सारी जो वो है वो सुधरती है, ऋतु सुधरती है। लेकिन अगर प्रकृति सुधरती है, लेकिन अगर संत आता है तो हमारी संस्कृति सुधरती है। ये इसी बात का प्रमाण है कि सन्यासी ने तो जन कल्याण का संकल्प लेके ही अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ मोह त्याग दिया। तो सन्यासी तो एक प्रकार से समर्पित व्यक्ति है जो जन कल्याण के लिए ईश्वर का एक प्रतिनिधि के रूप में घूम रहा है। उन्होंने कहा जितना भ्रमण का अवकाश सन्यासी को मिलता है, अवकाश का मतलब अपॉर्चुनिटी, टाइम, स्पेस, इतना अन्य किसी आश्रमी को नहीं मिलता।
इसलिए वो केवल सुकर्म का करता, अच्छे कर्मों का करने वाला हो और दुष्ट कर्मों को विनाश करने वाला हो, तो उस व्यक्ति के अंदर में तो केवल एक आदर्श जीवन उसका होना चाहिए। उन्होंने कहा जहां भी सन्यासी जाएगा, ये अवश्य है, अगर वो वेद के बताए हुए मार्ग पे चलेगा तो ये स्वाभाविक है कि जहां सन्यासी होगा वहां पाखंड नहीं होगा। जिस प्रकार से सूर्य ने रात्रि को नहीं देखा है, इसी प्रकार से सन्यासी की उपस्थिति में पाखंड स्थित नहीं रह सकता। और अंत में एक बड़ी बात कह रहे हैं कि जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा को कहते हैं, ऐसे ही परिव्राट सन्यासी को कहते हैं। और साथ में उसका एक चाणक्य नीति का उन्होंने उदाहरण दिया है कि सबसे बड़ी बात सम्मान की है। राजा के लिए लिखा है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी किंगडम के अंदर में उसको उसको सम्मान मिलता है, लेकिन सन्यासी जिसने सन्यास ले लिया सारी दुनिया में पूज्य है। तो चाणक्य नीति क्या कहती है? स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये उन्होंने उसकी महिमा बताई है कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ता है तो वो सारे संसार का स्वामी हो जाता है, और जब तक वो छोड़ता नहीं है तो वो केवल अपने घर का स्वामी रहता है। और उन्होंने एक सन्यासी के लिए कुछ थोड़े से डोंट्स भी बताए, जो वर्जनाएं हैं, प्रोहिबिशंस हैं, कि ये उसको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? जैसा हमारे जैन समाज के अंदर में हमको देखने को मिलता है अपरिग्रह। उन्होंने कहा सन्यासी को जितने उसके योगक्षेम के लिए, मतलब जितना उसके सुखद अपने जीवन के लिए जितना आवश्यक है, बस उसका जीवन का निर्वाह होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर संग्रहित करेगा तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो उसका मोह भी पड़ जाएगा उसे उन चीजों का। और अगर उसके पास में कुछ ज्यादा चीजें इकट्ठी हो गई तो चोर आदि के भय से उसके मन में एक पीड़ा भी रहेगी। तो ऐसा सन्यासी फिर समाज का कार्य नहीं कर सकता। सन्यासी तो ऐसा जिसके लिए नथिंग टू लूज। तो उन्होंने कहा है कि जो वेद विरुद्ध मार्ग पे अगर कोई प्रवृत्त सन्यासी है तो वास्तव में वो सन्यासी नहीं है, वो तो स्वार्थ आश्रमी। तो इतना कह के स्वामी जी ने सन्यास और हमारे वानप्रस्थ के बारे में जो कुछ बताने का प्रयास किया वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। मैं इसमें केवल एक अपनी तौर से नैरेटिव जोड़ना चाहता हूँ। ये जो पहली हमारी भारतीय संस्कृति में वनों में जा रहे के रहने का एक परामर्श था, आज की वर्तमान परिस्थितियों में संभवतः वो वानप्रस्थ इतना सरल और सहज नहीं रह गया। लेकिन उसके लिए अभी भी हमको ये समझना चाहिए कि शास्त्रों का संकेत क्या है। शास्त्रों का संकेत केवल ये है कि जितना हम इन चीजों की लिप्सा में लगे हुए थे, गृहस्थ आश्रम तो है ही लिप्सा का, उसके अंदर हमको अर्जन करके अधिक से अधिक सुख साधनों की इकट्ठा करनी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, संतान को योग्य बनाना है, वानप्रस्थियों को पालना है, सन्यासियों की सेवा करनी। तो गृहस्थ आश्रम में तो हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके छोड़ने की जो प्रवृत्ति है, दिस इज द टाइम टू पे बैक टू द सोसाइटी, वो वानप्रस्थ से आरंभ होता है। और वहां से जो हमको अभ्यास हो जाए और हमने जीवन का एक क्वार्टर केवल छोड़ने की प्रवृत्ति को अपने अंदर में विकसित करने में लगा दिया तो फिर संन्यास लेने में कष्ट नहीं होता। तो मैं केवल अपने जितने भी श्रोता इसमें जुड़े हैं उनको एक मित्र के नाते परामर्श देना चाहता हूँ। हमको किसी भी चीज में परिस्थिति अनुसार सन्यासी नहीं होना चाहिए, बल्कि मन स्थिति के अनुसार सन्यासी होना है। आप अपने परिवार की परिधि के अंदर रहते ही यदि सब चीजों के अंदर में से मोह अपना समाप्त कर दें, अपने परिवार के अंदर अधिकार की भावनाओं को तिरोहित करके केवल ना अब आपका कोई कर्तव्य रहा ना आपका कोई अधिकार रहा, जो कर्तव्य है वो आपके संतान का है, अधिकार भी आपने अपने संतान को डेलीगेट कर दिया है, उसके बाद में केवल और केवल आपको अपने कुशल क्षेम की और समाज के कल्याण की चिंता करनी है। तो इसके लिए हमारे यहाँ तो वेदों में एक मंत्र आता है, करतल कर पृष्ठे। उस वेद के माने ये करतल, कर का मतलब ये मेरा करतल है, कर का मतलब हाथ, इसका जो तल है। जब मैं ये करता हूँ तो मैं कमाता हूँ, और जब कर पृष्ठ करता हूँ तो मैं देता हूँ। आज तक मैं समाज से लेता आया था, अब मुझे केवल समाज को देना है। समाज से कुछ भी लेना नहीं है, लेना है तो केवल उनकी सद्भावना और शुभकामना लेनी है। तो उन्होंने इतनी बात कह के बताया, तो मैंने एक ही बात आपको फिर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि हमको वानप्रस्थी और सन्यासी होने के लिए परिस्थितिगत होने की आवश्यकता नहीं, मन स्थिति से होने की आवश्यकता है।
अगर ये होगा तो हम वेद मार्ग पे अपने घर के और घर के आसपास की परिधि में भी रह के इस वानप्रस्थ और संन्यास के नियमों का पालन करने में किसी सीमा तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको आज का जो हमारा व्याख्यान है वो इसका जो चैप्टर फर्स्ट है, प्रथम समोल्लास, जिसके लिए मुझे किसी एक विद्वान व्यक्ति ने परामर्श दिया था कि हर व्यक्ति को आप ये परामर्श दीजिए कि सत्यार्थ प्रकाश का जब भी अध्ययन आरंभ करें तो जिस प्रकार से हम सामान्य पुस्तकों में पहले चैप्टर से ही पढ़ना आरंभ करते हैं, उन्होंने कहा कि ये आप सबको बताइए कि कोई भी व्यक्ति पहले चैप्टर से सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना आरंभ नहीं करे। किसी को भी सत्यार्थ प्रकाश में वास्तव में रुचि है तो सबसे पहले दशम समोल्लास को पढ़े, जो प्रथम उत्तरार्ध का है, फर्स्ट हाफ का है। सेकंड हाफ के अंदर में जो 4 हैं उसके लिए ऋषि दयानंद ने स्पष्ट कहा कि जब तक कोई व्यक्ति पहले के 10 समोल्लास को पढ़ के नहीं समझ लेगा, मैं उसको अपनी ओर से अनुरोध करता हूँ। एक प्रकार से लेखक का, ग्रंथकार का ये आदेश और उसकी इच्छा है कि जब तक उसने पहले 10 पढ़ के नहीं समझे हों, वो उत्तरार्ध के सेकंड हाफ के 4 को पढ़ने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि जो बाद के 4 हैं उसको सामान्यतः लोग खंडन और मंडन की बात करते हैं, जबकि ऋषि दयानंद ने केवल और केवल सत्य अर्थों का प्रकाश करके विभिन्न धर्मों की उसमें विवेचना की है, उनका एनालिसिस किया है, बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस किया है। तो जब तक आपका माइंड में पहले बेस नहीं बना हुआ हो समझने और समझाने का, और सत्य के प्रति आग्रह अपने हृदय के अंदर में नहीं बने, तो आपको उन 4 को पढ़ने से केवल निराशा होगी। और हो सकता है मन के अंदर कोई ऐसा भी वो आ जाए कि ऋषि दयानंद ने ये सबके ऊपर में कोई लांछन लगाने का प्रयास किया। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में कभी किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाया। उन्होंने केवल और केवल शुभ चिंतक और हित चिंतक होने के नाते अपने हर व्यक्ति को मित्रवत उसको केवल परामर्श देने का प्रयास किया। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार ये पुनः अनुरोध करूंगा कि उत्तरार्ध को पढ़ने से पहले इसका जो पहला हमारा जो वो है पूर्वार्ध, उसको पूरा पढ़ लिया जाए। और इसीलिए हमने अपनी इस व्याख्यान माला में सबसे पहला आप लोगों के साथ जो शेयर किया था वो दशम समोल्लास किया था, उसके साथ हमने छठा समोल्लास किया था। क्योंकि दशम के अंदर में जीवन उपयोगी जितने भी हमारे व्यवहार हैं उनकी चर्चा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, भक्ष्य और अभक्ष्य, आचार और विचार, उसके बारे में उसमें चर्चा थी। षष्ठम समोल्लास में राजा के धर्म और प्रजा के धर्म के बारे में चर्चा थी। फिर हमने उस सेकंड इंस्टॉलमेंट में सेकंड और थर्ड चैप्टर लिया था, जिसके अंदर में ब्रह्मचारी जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो शिशु के जन्म से पहले जो उसके संस्कार होने चाहिए उसकी चर्चा है। उसके बाद की चर्चा है जब तक वो गुरुकुल में, गुरु की शाला में नहीं जाता है, विद्यालय में। और तीसरे के अंदर में यह है कि शिक्षा के अंदर में जाने के बाद में शिक्षा की, पढ़ाने की किस प्रकार की शैली हो, वो भी हम आप लोग के साथ चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में हमने फिर गृहस्थ आश्रम की चर्चा की है। उस गृहस्थ आश्रम की चर्चा करके आज हम अपने ये 5th लेक्चर में आपको वानप्रस्थ और संन्यास की चर्चा के बाद में पहले समोल्लास से आज आपको आरंभ करते हैं। पहले के अंदर में ऋषि दयानंद ने केवल ये बताने का प्रयास किया है कि इस सारी सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर एकमात्र एक है और वो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब पैरेलल टू नन, सेकंड टू नन। और जब सेकंड टू नन होगा का मतलब यह है कि किसी से वो निम्न श्रेणी का तो है ही नहीं, और साथ में पैरेलल टू नन, इसका मतलब वो अद्वैत है, उस जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो हम उसको अद्वैत भी कहेंगे। और क्योंकि सारी सृष्टि को उसने बनाया है तो इसलिए वो प्रत्यक्ष किसी के सामने नहीं आता है। अगर होता तो फिर सारे दुनिया के अंदर में सर्वव्यापी नहीं हो सकता था, इसलिए वो निराकार है। तो पहली 2 बात बता के कि ईश्वर एक है और वो निराकार है, तब उन्होंने ये बताया कि ईश्वर के कितने नाम हो सकते हैं। नाम के बारे में उन्होंने एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा ईश्वर अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है, उसे किसी की शक्ति की आवश्यकता नहीं, वो तो शक्ति और सारे प्राणी जगत को और जड़ जगत को देता है, तो इसलिए उसको किसी से शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं है, शक्ति सब उससे लेते हैं। तो एक प्रकार का वो पावर हाउस है, सोल पावर हाउस। तो टॉर्च बेरर भी है, पावर हाउस भी है, तो ज्ञान का
और हमारे जितने भी प्राणी जगत में जन्म लेते हैं, शरीरों के देने वाला, जितना हमारा ज्ञान है वो देने वाला, अन्य अन्य जितने भी हमारे व्यापार हैं जड़ जगत के, उन सबको कराने वाला वो एकमात्र उनका स्वामी है। तो उन्होंने कहा ऐसे जो बड़ी शक्ति है उसका एक कोई ऐसा नाम वेदों में स्पष्ट किया है कि वो उसका सर्वश्रेष्ठ नाम है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के कितने नाम हो सकते हैं? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर तो एक प्रकार की अभिव्यक्ति है जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, और अनुभव करते हैं उसकी रचना से। हम सामान्य रूप से जानते हैं, अगर हम कहीं बहुत सुंदर कोई एक पेंटिंग देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक ये विचार आता है कि ये पेंटिंग इतनी सुंदर है तो इसका कलाकार कौन हो। बस जिस क्षण हम अपने मन में बंधुओं ये विचार करने लगे कि ये सृष्टि इतने कमाल की अद्भुत बनी हुई है, सब कुछ जहाँ है वो अपने स्थान पे है, सूर्य चंद्रमा जिस प्रकार से हम देखते हैं सारी दुनिया के, उसी प्रकार से चारों तरफ उनका आदि दुनिया पे प्रकाश एक समय में रहता है। आदि पृथ्वी उनके सामने ये गोलाकार होने का प्रमाण है। तो ये सब जितनी भी अद्भुत व्यवस्था है, अन्य अन्य जितने नक्षत्र हैं, इन सबको स्थित करके, नदियों को पहाड़ों को अपने स्थान पे यथा स्थान रख के, उनमें कभी किसी प्रकार का एबरेशन नॉर्मली नहीं आता। जो हमारे यहाँ आजकल भूकंप और ये क्लाउड ब्रस्ट और ये सब जो आते हैं, ये एबरेशन है, ये सब अननेचुरल है। इसके पीछे हमारे वैज्ञानिक कारण भी जानते हैं, लेकिन उन कारणों की चर्चा करना मेरा विषय नहीं है। पर मेरा इतना बताना है कि जिसने सारी सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि में उसके बनाने में जितने उसके गुण हैं, जितने उसके कर्म हैं, जितना उसका स्वभाव है और जितना उसका स्वरूप है, उसको आप जितने भी शब्दों में व्यक्त करेंगे वो सब ईश्वर के नाम होंगे। तो इसीलिए उन्होंने पहले समूलदास में लगभग 100 नामों की तो व्याख्या की है, जिसमें से लगभग 50 प्रमुख नामों को मैं आपके सामने आज चर्चा भी करने वाला हूँ। लेकिन साथ में उन्होंने एक निर्देश कहा कि वेदों ने ये अपनी ओर से एक प्रोविजन उसमें रखा है कि ईश्वर का अगर कोई एक नाम लेना है जो सारे नाम को कवर करता हो, तो वो नाम केवल है ओम। ओम जो है ये 3 अक्षरों का है, आप सब जानते हैं, जहां भी लिखा हुआ देखते हैं, आपने कहीं भी देखा होगा, अगर किसी भी वैदिक ग्रंथ को देखा होगा तो उसमें 3 अक्षर का ओम लिखा होता है। ओ लिखा होता है, बीच में 3 की डिजिट होती है और बाद में मैं होता है जो हलंत होता है, मतलब आधा होता है। तो ओम जो है इसमें 3 अक्षर हो गए, ए उ और मैं। ऋषि दयानंद ने स्पष्ट किया। और संस्कृत के जो लोग थोड़ा बहुत संस्कृत को जानते हैं, आज मेरी एक बहन यहाँ पे मोहिनी मित्तल जुड़ी हुई है मुझसे छोटी, वो संस्कृत की ज्ञाता है, वो इस बात को जानती है और अन्य अन्य भी बहुत लोग जानते होंगे। ए और उ को मिलाते हैं तो ओ बनता है, ए और ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, ए और ए को मिलाते हैं तो आ बनता है। तो आकारांत, फिर एकारांत और ओकारांत। तो ओकारांत मतलब ए और उ के ओम हम उच्चारण करते हैं, और मैं। तो ओम जो है ये 3 अक्षरों का समुदाय है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि सारे जितने भी संभव ईश्वर के नाम हो सकते हैं, उन सारे नामों का दर्शन हमको इस ओम नाम में मिलता है। उसका उन्होंने थोड़ा सा एलिसिडेट किया। एलिसिडेशन क्या है? ये ए जो है ये 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने कहा पहली जो रिप्रेजेंट करता है वो विराट को करता है। उसका एक विराट स्वरूप है। विराट का मतलब है बहुत बड़ा, जिसका बोला कि मैग्नीट्यूड इतना हो जिसको नापा ना जा सकता हो। तो क्या कह रहे हैं, बहु प्रकार से सारे जग को जो प्रकाशित करता है वो विराट है। विराट का मतलब जायंट, इतना जायंट कि जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने कहा इसका अग्नि स्वरूप है। अग्नि स्वरूप का उन्होंने अर्थ बताया कि जो सर्वज्ञ है, सारे ज्ञान दुनिया के जिसको हैं, जिसको हम कहेंगे कि वो बिल्कुल ये सारी हम जितने भी जीव हैं, हमारा हम अल्पज्ञ कहलाते हैं। हमारे ज्ञान की कोई सीमा है, और जिसके ज्ञान की कोई सीमा ना हो, असीमित ज्ञान हो, सर्वज्ञ हो, दुनिया की हर चीज वो जानता हो, वो अग्नि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और जैसा है तो वो सारे प्राणी जगत के लिए जानने योग्य भी है, वो उसका अग्नि रूप है। आश्चर्य की बात होगी, आप लोगों को प्रसंगवश बता रहा हूँ कि जितने वेद हैं हमारे, चारों वेद में एक सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है।
कुल मिला के लगभग 20,379 मंत्र हैं इन चारों में। तो उसमें जो ऋग्वेद का पहला वेद ऋग्वेद, उसका जो पहला मंत्र है वो आरंभ ही अग्नि से होता है। अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जिस अग्नि स्वरूप के हम ईश्वर के स्वरूप के बारे में, नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वेदों की स्तुति ही उससे आरंभ हुई है, क्योंकि अग्नि ईश्वर का प्रमुख एक बहुत सुंदर नाम है। फिर उन्होंने कहा है कि आकार से हमको विश्व का भी ज्ञान होता है। विश्व का मतलब हम सारी दुनिया मानते हैं, लेकिन वैदिक अर्थ जो है वो इससे भिन्न है। उन्होंने कहा जो इन सब में व्याप्त होके हर चीज में प्रविष्ट हो रहा हो उसको विश्व कहते हैं। इसी नाम से जुड़ते हुए नाम आपको आगे इसका स्पष्टीकरण मिलने वाला है। फिर उन्होंने कहा इसमें ऊ है, ऊ का उकार हो गया। पहला आकार था, ये उकार। उकार में भी 3 लक्षण आते हैं, 3 उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ किसको कहेंगे? हिरण्य कहते हैं चमकीला। गर्भ क्या हुआ? जिसके अंदर में किसी चीज का निर्माण होता है, जैसे माता के गर्भ में शिशु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये अंतरिक्ष है, इसके अंदर में सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का जो गर्भ है उनका नाम है हिरण्यगर्भ। उनकी उत्पत्ति और निवास स्थान भी वही है, इसलिए उसका ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है कि हिरण्य वो उसका वो चमकीला गर्भ है जिसके अंदर में ये सब अवस्थित है। दूसरा नाम उन्होंने बताया कि इसका नाम वायु है। वायु किसको कहते हैं? जो जगत को धारण करती है और उसके अंदर में जीवन की पालना करती है और अंततः उसका प्रलय भी करती है। इन लक्षणों को हम बहुत कुछ जब बाद में शिव के लक्षण सुनेंगे तो बहुत समानता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वो सब बलवानों से भी बलवान है, इसलिए वो उसका नाम है वायु। ये ईश्वर के नाम की बात कह रहा हूं मैं आप लोगों को। फिर उन्होंने कहा तीसरा उसका लक्षण है तेजस। तेजस का था इतना तेजस्वी, स्वयं प्रकाशमान है और तेजस्वी जितने लोग हैं उनका प्रकाश करने वाला। तो 3 लक्षण पहले बताए आकार के, 3 बताए हैं उकार के, और अब 3 इसके मकार के हैं। मकार में कहा है उसका पहला नाम है ईश्वर। अभी तक तो हमने परमात्मा की बात की थी, अब हम ये बता रहे हैं कि परमात्मा का एक नाम जो है वो ईश्वर भी प्रमुख है मकार में। वो क्यों है? क्योंकि वो संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी है। उसके पास में दुनिया का हर ऐश्वर्य है, बाकी किसी के पास में ऐश्वर्य की सीमा होती है। और ऐश्वर्य का मतलब होता है सब प्रकार के साधन। वो साधन हमारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी होते हैं, भौतिक ऐश्वर्य भी होते हैं, और इसके अलावा हमारे मानसिक भी होते हैं। तो सारे ऐश्वर्य होने से वो परम आत्मा है। बाकी जितनी जीवात्माएं हैं उन सबका भी उन सबसे भी जो सबसे श्रेष्ठ है वो परम आत्मा। और ऐश्वर्यशाली होने से, अनंत ज्ञान होने से उसका नाम ईश्वर है। ईश्वर संबंध ऐश्वर्य से जुड़ता है, परमात्मा का संबंध आत्मा से जुड़ता है। तो जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है वो परमात्मा। दूसरा उन्होंने कहा मकार से लक्षण आता है आदित्य। आदित्य वो है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, अनादि तो था ही, अनंत भी है। और एक है उसका तीसरा नाम प्राज्ञ। प्राज्ञ का मतलब जो जगत के, इस सारी सृष्टि के जितने भी समस्त व्यवहार हैं उन सबको बिल्कुल यथावत जानता हो, उसको प्राज्ञ कहेंगे। तो 3 आकार जो है, ये आकार उकार मकार, इन तीनों के इस प्रकार के 9 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इनका एम्प्लीफिकेशन वो आगे आप देखिए। उन्होंने कहा है कि यजुर्वेद में ये कहा गया है ओम खम ब्रह्म। आप में से अधिकांश लोगों ने इस क्लॉज को सुना भी होगा, इस मंत्र को सुना होगा। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 17वां मंत्र है, ओम खम ब्रह्म। इसमें क्या आ गया? ओम तो ईश्वर का जो सर्वश्रेष्ठ निज नाम है। खम, खम का अर्थ है जो सारे में परमेश्वर होके व्यापक है। और साथ में ब्रह्म कहा, ब्रह्म इसलिए कि वो सबसे बड़ा। ब्रह्म का अर्थ ये है कि जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, जिससे बड़ा कोई नहीं है, वो ब्रह्म है। तो ओम खम ब्रह्म जो है, ये भी बताया कि ओम जो है वो खम ब्रह्म होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जितने भी अन्य नाम हैं वो, जैसा मैंने पहले बताया, या तो गुण के आधार पे हैं, गौणिक कहते हैं उनको, या वो कर्म के आधार पे हैं, वो कार्मिक हैं, या वो उसके स्वभाव के आधार पे हैं, वो स्वाभाविक हैं। और स्वरूप के बारे में मैं आपको ये 9 इंग्रेडिएंट्स बता चुका हूँ। अब उन्होंने ये बताना शुरू किया है कि सबसे पहले हम अगर ईश्वर के नामों की गिनना शुरू करें
तो उसमें पहला नाम हम लेंगे कि ब्रह्मा है उनका नाम। ब्रह्मा किसको कहेंगे? जो सब जगत का बनाने वाला, अनंत बलयुक्त है, सर्वश्रेष्ठ है, और सारे संपूर्ण जगत को फिर रचने के बाद में उसको बढ़ाता भी है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? ब्रह्म। इसलिए सारी सृष्टि को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरा नाम उन्होंने कहा है, इसका नाम विष्णु है। विष्णु के लिए हम लोग सामान्यता तो एक हमारे मन में एक कल्पना है, हम ब्रह्मा शब्द से जब बोलते हैं तो हमको एक चतुर्भुज व्यक्ति की कल्पना है, उसके चार सिर हैं, उसकी भुजाएं हैं। अब ये सब तो एक हमारे काल्पनिक, बाद में जो पुराणों में रचना की गई है उसके परिणाम स्वरूप है कि हमारे मन में ऐसी आकृतियां उभरती हैं। पर जब ईश्वर के ही ये नाम है तो ईश्वर तो निराकार है। तो हमको सबको समझना चाहिए कि मैं जब ब्रह्मा की बात करता हूँ वो भी निराकार हैं, मैं केवल उनके लक्षण बता रहा हूँ। इसी प्रकार से विष्णु भी निराकार है, मैं उनके अब लक्षण आपको बता रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो सर्वत्र व्यापक है, जिसका मैंने आपको विश्व के साथ बताया, जो सबके अंदर घुस के बैठा हुआ है, प्रविष्ट है, जिसको कहते हैं कण कण में ईश्वर का वास है, तो क्या है? वो विष्णु है। और चर और अचर जगत, ये जो हमारा जितना भी जड़ जगत है और जितना प्राणी चेतन जगत है, इन सब के अंदर में वो समाया हुआ है। फिर तीसरा उसका एक नाम है शिव। शिव के कहने से भी हमारे मन में आकृति उभर के आती है, लेकिन मैं फिर अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध कर रहा हूँ कि उस आकृतियों को आप अपने मन में रखिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव अर्थ क्या है। शिव का अर्थ जो है वो बड़ा, बहुत बहुत डिटेल में, बड़ा एलोबरेट स्वामी दयानंद जी ने दिया है। उन्होंने कहा जो मंगलमय है और सबका कल्याण करता है, इसके कारण उस शिव को हम शंकर भी बोलते हैं। फिर दूसरा उन्होंने कहा जो दुष्टों को दंड देके उनको रुलाने वाला है, इसलिए उसको कहते हैं रुद्र। क्योंकि दुष्टों को जब दंड देगा तो रोएंगे वो, और जब रोते हैं तो उसको हमने क्या कहा? ये रौद्र स्वरूप है। तो शिव जब रौद्र स्वरूप में होता है तो वो रुद्र कहलाता है। फिर उन्होंने कहा है कि शिव जो है वो किसी से बना नहीं है, आप से ही आप है वो, इसलिए स्वयं भू है वो, किसी से उत्पन्न नहीं है। फिर उन्होंने कहा जो महादेवों का भी महादेव है, इसलिए उसको हमने अंत में विद्वानों का भी विद्वान होने से महादेव की भी संज्ञा दी है। तो शिव के कितने सिनोनिम हैं? ये चार तो मैंने आपके सामने बताए हैं, अन्य बहुत से सिनोनिम हमारे भी जानकारी में होंगे और आगे ग्रंथ में भी आपको चर्चा मिलेगी। अब मैं इसके अलावा जितने अन्य भिन्न नाम हैं, कुछ उन नामों की हरीडली आपके सामने चर्चा करता हूँ। मैंने लगभग और 40 के करीब नाम आपके लिए छांट के रखे हैं, और मुझको लगता है कि आज की टाइम की सीमा में मैं प्रयास करके आपके सामने उनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला हम बोलते हैं ईश्वर को सूर्य कहते हैं। सूर्य किस लिए है? कि वो सबको प्रकाशित करने वाला और स्वयं प्रकाश रूप है। इसके अंदर में हम ये मान के चले हैं कि ये जो सूर्य है अंतरिक्ष में, इसका तो आकार है, एक निश्चित आकार है, उसका एक परिमाण है, वो ईश्वर का बनाया हुआ एक अग्नि स्वरूप पुंज है। इसलिए कोई ये समझे कि इसी सूर्य को हम ईश्वर कहें, इसके बारे में हमको थोड़ा सा विचार करना हो। इसी प्रकार से उन्होंने कहा जो चंद्रमा है, ये चंद्र जो है ये भी ईश्वर का एक नाम है, जो आनंद स्वरूप है और सबको आह्लादित करता है। क्योंकि जब रात्रि की शीतलता होती है चंद्रमा के कारण, तो हर व्यक्ति बड़ा शांत होता है, हर व्यक्ति को दिन भर की थकान से विश्रांति मिलती है, अगले दिन के लिए शक्ति मिलती है, इसलिए उसका नाम चंद्र भी है। ईश्वर के एक नाम है सविता। सविता कहते हैं जन्म देने वाले को। तो जो सारे जगत की उत्पत्ति करता है, माता को भी सविता कहा जाता है। और जब वो शिशु को जन्म देती है तो उस जन्म देने की प्रक्रिया को कहते हैं डिलीवरी। डिलीवरी के लिए संस्कृत में शब्द है प्रसव, और माता को कहते हैं प्रसविता। तो समझ लीजिए कि जो एक प्राणी जगत में मातृशक्ति है उसको प्रसविता कहा, तो जो सारी सृष्टि का जगत का उत्पत्ति करता है उसको सविता का। तो सविता भी उसी का नाम है। हम उसको बृहस्पति भी बोलते हैं। बृहस्पति कहने से हम देवताओं के गुरु की कल्पना करते हैं, ये भी हमारी एक पौराणिक कल्पना है। लेकिन वैदिक कल्पना में क्या है? इसका संधि विच्छेद है। बृहत पति, बृहत कहते हैं सबसे बड़ा, और पति का मतलब सारे सृष्टि का स्वामी। तो जो बड़े से बड़ा हो, और आकाश आदि जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। हम एक
उपग्रह के बारे में, मंगल की बहुत सी ज्योतिष के अंदर में कल्पना भी हमारी है कि क्या क्या करता है। मैं स्वयं भी एक ज्योतिष आचार्य हूँ, उन सब के बारे में मैंने भी पढ़ा है, और कभी भी कोई जानना चाहे तो मैं बता भी सकता हूँ। लेकिन जो वास्तविक सत्य उसका अर्थ है, वो सत्य अर्थ तो वेदों में जो बताया गया वो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। उन्होंने कहा मंगल वो है जो जीवों के मंगल का कारण और स्वयं मंगल स्वरूप। फिर उन्होंने कहा बुध क्या होता है, जो सब जीवों के बोध का कारण है। ये सब जो है ये पदार्थ नहीं है, ये ईश्वर के नाम के पर्यायवाची है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता जा रहा हूँ। हम में से कोई ये ना समझे कि ये अलग आइडेंटिटीज हैं। जब हम मल्टीपल आइडेंटिटीज बना देंगे तो फिर हम अपने साथ और अपने ज्ञान के साथ बंधुओं न्याय नहीं कर पाएंगे। एक ही आइडेंटिटी है जिसको मैंने कहा है अद्वैत, अनपैरेलल्ड। ये मैं उसी के आपको सिनोनिमस बता रहा हूँ। तो जितने भी उसके सिनोनिम्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके मन में एक स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए कि ये निराकार ईश्वर के ही विभिन्न नामों की चर्चा रविदेव जी आपके सामने ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश से उद्धृत करके बता रहे हैं। इसके बारे में हमारे मन में कोई भ्रम ना हो। हम जानते हैं ग्रहों के अंदर में हम शुक्र कहने के अभ्यासी हैं। उन्होंने कहा जो सबसे अत्यंत पवित्र हो और साथ में जो उसके संपर्क में आने वाला उसको पवित्र करने वाला हो, इसलिए उसको शुक्र कहते हैं। उसी को शनैश्चर भी बोलते हैं, जो धैर्यशाली है और सर्वाधिक चर गति भक्षणेयो। मतलब ये कि उसकी गति जो है वो बहुत मंथर होती है। और इस मंथर गति का मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर स्पष्ट करता हूँ कि हमारी एस्ट्रोनॉमी में जितने ये हमको ज्ञात ग्रह हैं, जो सैटेलाइट हमको दिखते हैं, उनके नाम हमने वेदों में से लेके ये दिए हुए हैं। उनके जो गुण हैं उसमें क्या है, वो सबसे ज्यादा जो स्लो मूविंग है वो हमारा सैटर्न है। जैसे कि सूर्य एक महीने में एक राशि बदलता है, इस प्रकार से एक महीने में सूर्य एक राशि बदलता है। ये शनि जो है ये एक राशि को बदलने के अंदर में 2.5 साल लगाता है। तो इससे कल्पना करिए कि वो कितना धीरे चलता है। तो जो धीरे चलता है वो शनि है चर, जो बहुत धीरे धीरे चरने वाला है उसका नाम है शनैश्चर। ईश्वर का नाम शनैश्चर है क्योंकि वो अत्यंत धैर्यशाली है और वो चलता भी नहीं है। वो उसको कहते हैं कि सारा दुनिया में चलता भी है और एक चलता भी नहीं है। जो सारी दुनिया में व्यापक हो वो कहाँ चलेगा, उसके लिए चलने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो इसलिए उसको शनैचर भी कहा है। उसी को राहु भी कहते हैं। राहु किसको कहते हैं, जो दुष्टों को और अन्यों से सब समाज को छुड़ाने हारा है, इसलिए उसका नाम राहु है। ईश्वर का ये गुण है कि वो केतु भी है। वो स्वयं तो रोगों से रहित है ही है और लोगों को, सारे समाज को आरोग्य भी प्रदान करता है। हम ईश्वर के एक नाम में पृथ्वी भी उसका नाम है। पृथ्वी इसलिए है कि वो सारे विस्तृत जगत का विस्तार करने का योग्य है। वो करने वाला है। सारी दुनिया को उसने पृथ्वी उसने बना के दी है। उसने रहने के लिए हमको स्थान दिया है, उसी को नाम को हमने उसके गुणों के कारण उसको पृथ्वी का उसका नाम दिया है। जल भी ईश्वर का नाम है। जल का गुण क्या है, जो अव्यक्त है, दिखाई तो देता नहीं है, उसका कोई रंग भी नहीं होता है। लेकिन जो अव्यक्त और परमाणु हैं, जितने भी हमारे एटम्स हैं, एटम्स के बाद में उसके अंदर में जितने न्यूक्लियर्स हैं, उन सारों को जोड़ता भी है और उनको अलग भी करता है। उनका सॉल्यूशन भी बनाता है, उनका डिसोल्यूशन भी करता है। तो जो ये सब करता हो वो कौन सा मीडियम है, वो जल कहलाता है। उसको H2O भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम है, और वेदों के अंदर उसका नाम वरुण भी है। ईश्वर का भी नाम जो है जल है। ईश्वर का नाम आकाश भी है, जो चारों ओर से जगत का प्रकाशक है। ईश्वर को हम लोग जो है सामान्यतः जब विष्णु का नाम लेते हैं तो नारायण की बात करते हैं। ये भी लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश में कि ईश्वर का नाम एक नाम नारायण भी है। नारा के लिए बताया है कि नारा किसको कहते हैं। जल को भी नारा कहते हैं, जो प्राणी जगत है, प्राण है, उसको भी नारा कहते हैं, और जितने भी ये जीव हैं, चेतन जगत है, उनका नाम भी नारा है। और अयन का मतलब है उसका रेजिडेंस, एबोर्ड, कहाँ पर रहने का स्थान। जैसे हम बोलते हैं रामायण, राम जहां जहां पर भी रहे जाकर वनवास में, वो सब क्या कहलाती है, रामायण कहलाती है। इसी प्रकार से जो नारा के लिए अयन है वो नारायण है।
तो इसलिए सब जीवों में व्यापक है और इनका जल का, प्राण का और जीवों का एक प्रकार का उनका निवास स्थान है। फिर उन्होंने कहा है कि कुबेर, कुबेर से हमको क्या लगता है कि जो सारे धन का, संपत्ति का स्वामी है। और रामायण में तो आता है कि रामायण के बड़े भाई का भी नाम कुबेर था। वो तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम कुबेर वेदों में से एक सुंदर शब्द ढूंढ के ले लिया गया उनके गुणों के कारण। उनके पास भी बहुत ऐश्वर्य था, लेकिन ईश्वर का नाम कुबेर है। क्यों कुबेर है? क्योंकि अपने में वो कण कण में व्याप्त होने से सबको आच्छादित करता है, सबको कवर करता है, सबको एक प्रकार की प्रोटेक्शन देता है, इसलिए उसको कुबेर कहा। उसी को गणेश कहा। देखिए, ये सबको बड़ा आश्चर्य होगा। हम गणेश के नाम सुनते भी हमारे मन में एक आकृति आती है, क्योंकि हम लोगों की ये एक पुरानी शुरू से परंपरा ऐसा जानने और मानने की रही है। और एन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो इतना सरल नहीं है कि मेरे एक बार कहने से आपको समझ आ जाए। लेकिन मैं बार बार फिर स्ट्रेसफुली कह रहा हूँ, मैं केवल और केवल निराकार ईश्वर के नामों की चर्चा कर रहा हूँ। इन्हीं आकृतियों की चर्चा का मेरे व्याख्यान से कोई संबंध नहीं है। तो इसको हम लोग समझ के और बिल्कुल ही बिना प्रेजुडिस के, एकदम अनप्रेजुडिस्ड माइंड से हम इसको सुनने का प्रयास करेंगे, तब हमको समझ में आएगा। उन्होंने कहा गणेश क्यों कहते हैं? जो प्रकृति आदि जितनी भी जड़ है, क्योंकि 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, इनको नेचर बोलते हैं। ये नेचर के 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो वो सारे जड़ होते हैं। तो जो जड़ प्रकृति को और सारी जितनी चेतन जगत है, उन सबका जो स्वामी और पालन करता है, वो गणेश है। वो उन सबका स्वामी है। इसका अर्थ है स्वामी, और गण का अर्थ है प्रजा। तो जो सारी संपूर्ण ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के अंदर प्रजा है, उस प्रजा में मनुष्य मात्र भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, जलचर भी हैं, नभचर भी हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, वो सारे के सारे उसकी प्रजा हैं। प्रजा का मतलब जिसको उसने उत्पन्न किया है। माँ की प्रजा कौन होती है? माँ की संतान होती है। पिता की संतान जो होती है वो उसकी प्रजा होती है। राजा जिनके ऊपर में जिनका कुशल क्षेम और योग क्षेम की जिम्मेदारी लेता है, वो उसकी प्रजा होती है। और संतान जो सारी की सारी ईश्वर की है, तो ईश्वर की प्रजा है। तो सारी प्रजा का पालन करने वाला, उन गणों का पालन करने वाला, वो गणेश कहलाता है। उसी का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी उसको कहते हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। और जो हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो वो हमको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्य का मतलब है मेरा टारगेट। किसी भी क्षत्रिय का टारगेट क्या होता है? उसका ये होता है कि मैं शत्रुओं को परास्त करके विजय प्राप्त करूं। तो उसको क्या मिलता है? वो विजय लक्ष्मी होती है। किसी भी वैश्य को लगता है कि मेरे पास धन संपदा हो, तो उसके जो प्राप्त होती है, तो वो धन लक्ष्मी होती है। जो किसान है वो चाहता है कि अन्न जो है वो मुझको एक प्रकार से, वो क्या होता है? धान्य लक्ष्मी होती है। वैश्य को धन लक्ष्मी और कृषक को धान्य लक्ष्मी। और जब हम घर में बहू लेके आते हैं और समझते हैं हमारी वंश परंपरा चलेगी, तो हम कहते हैं उसको गृह लक्ष्मी। तो वेदों ने स्पष्ट किया कि लक्ष्मी जो है ये ईश्वर का नाम है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य जो है उसी को पाना है। उन्होंने कहा सरस्वती भी उसी को कहते हैं। सरस्वती क्या है? जो विविध विज्ञान, विज्ञान का मतलब है स्पेशल साइंस। जो स्पेशल नॉलेज होती है उसको हम साइंस बोल देते हैं, और जो जनरल नॉलेज होती है उसको हम नॉलेज ही बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और जब हमारे को उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मालूम हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमने ये साइंस पढ़ ली। तो जो सारी साइंस का जितनी भी दुनिया के अंदर संभव हो सकती हैं, जितने भी ये फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है? हमारे जितने भी ये 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, उनके बेसिक जो वो हैं पैरामीटर्स, और बेसिक उनके जो लक्षण हैं, वही फिजिक्स है। उनकी क्या शक्ति है, किस प्रकार से उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, वो सारा फिजिक्स जो है उसको गवर्न करता है। तो उन्होंने कहा है कि जो विविध विज्ञान, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसके भी जो संबंध को किसी भी प्रकार से स्थापित करने वाला है, वो जो है उसको जानने वाला वो सरस्वती है। उन्होंने कहा श्री। बहुत सी जगह हमने देखा है कि बहुत से हमारे यहाँ पर इस प्रकार के कुछ संप्रदाय बने हैं जिन्होंने अपना लोगो श्री बनाया। ये श्री जो है ये ईश्वर का नाम, जिसके पास में सब प्रकार का सेवन, सारे जगत के विद्वान और योगी जन जिसका सेवन करते हो, जिसकी सेवा करते हो, जिससे सेवन प्राप्त करते हो, वो श्री है। उन्होंने कहा ईश्वर का नाम भगवान भी है। भगवान किस लिए है? कि भक्त का अर्थ होता है ऐश्वर्य। और 6 भगों की हमारे यहाँ ब्रह्म पुराण में चर्चा है।
उन्होंने कहा जिसके पास में ये सारे भग हैं वो भगवान है। किसी के पास में गाड़ी है तो गाड़ीवान है, धन है तो धनवान है, बल है तो बलवान है, ऐसे भग है तो भगवान है। इसलिए कहा जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है और हमारे भजने के योग्य है, इसलिए हमने उसको भगवान कहा। उसी को मैंने जैसे पहले कहा था कि वो अद्वैत है। अद्वैत क्या है कि उसके जैसा, ना तो उसके जैसा सजातीय है, ना उससे कोई विजातीय है। हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर इसके तुल्य है, या ये हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर इससे डिफरेंट है, क्योंकि ईश्वर की तो कोई क्षमता ही नहीं है, उसकी एनालॉजी नहीं हो सकती। कोई उसके किसी के साथ में उसका आप जो है तुलना नहीं दे सकते। तो तुलना नहीं दे सकते तो वो क्या है, वो अद्वैत है। बाद में ये अद्वैत शब्द हमारा शंकराचार्य से जुड़ा है। उसके बाद में द्वैत आया है, अद्वैत आया है, और भिन्न भिन्न उसके अंदर में बहुत कुछ आया है। उसकी मैं चर्चा आज नहीं करूंगा। लेकिन अद्वैत की पुष्टि करके मैं वेदों के अंदर, वेदों में ईश्वर को अद्वैत ही बताया गया है। और उन्होंने क्या है कि वो अद्वैत होने से इन सब चीजों से वो द्वैत से रहित है, ड्युअलिटी नहीं है, सिंगल सोल है वो। और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि ईश्वर का नाम परमात्मा भी है। जैसा मैंने आपसे बताया, जितनी भी ये जीवात्माएं हैं उन सब में जो सबसे श्रेष्ठ है वो परमात्मा है। यहाँ पे मुझको एक स्पष्टीकरण आपको देना है, जो कि सत्यार्थ प्रकाश में तो इस समय स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन वेदों का आशय है। हम लोग ये मानते हैं कि ये सारे जितने भी जीवात्माएं हैं ये परमात्मा ने बनाई हैं। बंधुओं, ऐसा नहीं है। वेदों में ये लिखा है कि तीन चीज ऐसी हैं जो सृष्टि के आदि काल में बन गई। तीन चीज क्या हैं? एक तो जड़ प्रकृति है, एक जितनी भी जीवात्माएं हैं, और एक परमात्मा। तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों चीजें जो हैं ये शुरू में ही, सृष्टि के आदि काल में ही अपौरुषेय हैं। ये अनंत हैं, अनादि हैं, इनका ना कभी आरंभ हुआ, ना इनका कभी अंत होना है। तो परमात्मा ने प्रकृति को या इसको बनाया है, ये प्रश्न इसके लिए बड़ा गूढ़ विषय है। जब हम कोई सातवां इसका समोल्लास पढ़ेंगे उसके अंदर में इसकी बहुत खुल के चर्चा है। इसलिए मैं केवल ये संकेत में कह रहा हूँ कि तीन हमारे यहाँ पर अनादि वो हैं पदार्थ, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। तो उन्होंने कहा परमात्मा जो सब जीवों से उत्कृष्ट है और जितनी भी प्रकृति आदि जड़ है उनसे भी अति सूक्ष्म है और सारे जीवों की अंतर्यामी आत्मा है, इसलिए उसको परमात्मा कहा। हम उसको इंद्र भी कहते हैं। इंद्र इसलिए कहते हैं कि जो सारे अखिल ऐश्वर्यों से स्वामी है, और इसके अतिरिक्त वो परमात्मा भी है, इसलिए हम प्रकारांतर से उसको इंद्र भी बोलते हैं। मतलब एक ही गुण के कई वो हो सकते हैं नाम। सिनोनिम का मतलब यही होता है कि मैं एक नाम से कितने सारे उसके अर्थ जान सकता हूँ। हम डिक्शनरी जब देखते हैं तो हमको देखते हैं कि सामान्यतः किसी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उन सारे अर्थों से केवल उस नाम से हमको उन अर्थों का ज्ञान होता है, पर उसमें हमारी बुद्धि क्या है, हमारा कुशलता क्या है, वो सत्यार्थ प्रकाश में इसी पहले समोल्लास में तो स्वामी दयानंद ने लिखा कि ईश्वर को, हमारी जो दी हुई ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग करके हमको प्रकरण के अनुसार विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हमको जितने भी सिनोनिम्स हैं उसमें से एक चूज करना होता है। उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए कोई गुरु किसी समय कहीं बैठा है और भोजन के लिए, या उन्होंने राजा का उदाहरण दिया कि राजा जो है वो भोजन के लिए अगर बैठता है और अपने पाचक से कहता है, या जो अपना वेटर है उससे कहता है कि सैंधव आने है। उन्होंने कहा सैंधव जो है इसके दो अर्थ होते हैं। सैंधव का अर्थ सैंधव नमक भी होता है, और सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। कह लगे अब इतनी कुशलता उसके अंदर में होनी चाहिए जो उसका सेवक है, कि भोजन करने के लिए राजा बैठे हैं तो सैंधव लाना है। जिस सैंधव के दो अर्थ हैं उसमें से क्या लाना है? भोजन करने बैठे हैं तो स्वाभाविक है नमक लाना है। और कहीं पे अगर वो बाहर जाने के लिए खड़े हैं, युद्ध के लिए प्रयाण कर रहे हैं, वहां सैंधव भाग करें तो वहां क्या लाना है? वहां घोड़ा लाना है। तो कुशलता किस में है कि प्रकरण के अनुसार जैसा प्रसंग हो, जिसकी रेलेवेंस हो विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वो अर्थ हमको लेना है। तो यहीं पर यह भी बात बताई गई कि जो ये इंद्र है इसी प्रकार का है। तो मैंने जितने नाम आपको बता रहा हूँ, इन नाम के अंदर में इनके बहुत सारे नाम हैं, बार बार आप उसका रिपीटिशन भी देख रहे होंगे।
अभी एक ईश्वर का नाम है अज। अज का अर्थ होता है जिसका जन्म नहीं होता। जब मैंने कहा वो अनादि है, वो कभी भी शरीर तो देता है पर शरीर खुद स्वयं नहीं लेता। तो जो शरीर देता तो है, जन्म देता है, लेकिन स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इसलिए उसका नाम अज है। उसका नाम निरंजन भी है। हमारे यहाँ बोलते हैं अलख निरंजन। अब निरंजन के अंदर में मालूम नहीं हमारे यहाँ क्या क्या कल्पनाएं चलती हैं, लेकिन ईश्वर का नाम निरंजन क्यों है? कि वो आकृति से निराकार है, आकृति नहीं है उसकी कोई, चक्षु नहीं है उसके। उसके चक्षु जो हैं, लोग ज्योतिष पुंज के रूप में सूर्य और चंद्रमा को तो बोलते हैं, लेकिन वो भी कोई उसके 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 चक्षु नहीं है, क्योंकि जिस समय ग्रहण हो, रात्रि भी हो, ईश्वर तो उसके अंदर में भी सब चीजों को देखता है। उस चक्षु की आवश्यकता ही नहीं है। उसको फिजिकली किसी भी प्रकार के देखने के लिए कोई उपकरण नहीं चाहिए। जिस प्रकार से नेत्रहीन व्यक्ति अपने बुद्धि के प्रयोग से चीजों को देख लेता है, तो ईश्वर जो है वो निरंजन है। अंजन का अर्थ है अंजनी, दृष्टि। ईश्वर निरंजन है, उसकी कोई अंजनी नहीं है, तो इसलिए वो चक्षु आदि इंद्रियों से पृथक है। सत उसी का नाम है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में तीन शब्द आते हैं जो सत्य प्रकाश में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा सत है, चित है, आनंद है। ये तीनों नाम ईश्वर के हैं। सत्य क्या है? जो सदा वर्तमान है, उसका ना कोई भूतकाल होता है, उसका कोई पास्ट नहीं है। ईश्वर का कोई पास्ट नहीं होता है, ईश्वर का कोई प्रेजेंट नहीं होता है, ईश्वर का कोई फ्यूचर नहीं होता है। इसलिए ईश्वर को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी का मतलब तीनों काल को देखता नहीं है, तीनों काल उसके हर समय वर्तमान होते हैं। उसको उसका भी ज्ञान है, इसका भी ज्ञान है, उसका भी ज्ञान है। जैसे हम ही लोग जो हैं, हम ये देखें, हम आयु के वर्ग में हैं। मान लीजिए हम थर्ड क्वार्टर के एज के लोग हैं। हमको बहुत कुछ अपनी हिस्ट्री का भी पता है, और बहुत कुछ अपने प्रेजेंट का भी पता है। फ्यूचर का तो किसी को पता होने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो नया बच्चा अभी जन्म लिया है, उसका कोई पास्ट नहीं है, तो उसके लिए केवल एक काल है। और जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, उसका पास्ट भी होने लगता है, उसका प्रेजेंट भी होने लगता है। पर ईश्वर अपने आप में एक ऐसा सर्वशक्तिमान वो है कि जिसका ना कोई पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है। वो सब कुछ उसको मालूम है, इसलिए उसको क्या कहा गया? वो सत है। किसी काल से बाधित नहीं है, वो बंधा हुआ नहीं है। वो चित भी है। चित क्यों है? कि वो स्वयं चेतन स्वरूप है। हमारी सृष्टि के अंदर में दो ही चेतन सत्ताएं हैं, या तो परमात्मा है या जीवात्मा है, और प्रकृति है, वो जड़ है। तो उन्होंने कहा जो चेतन स्वरूप होकर सब जीवों को चितने वाला है, उनकी चेतनता विकसित करने वाला है, वो कौन है? वो चित है। आनंद क्या है? जो सब धर्मात्मा जीवों को मुक्ति अवस्था में, जब हमारे को मोक्ष मिलता है, किसी भी आत्मा को आवागमन से मुक्ति मिलती है, तो जो आध्यात्मिक रूप से मोक्ष है, उस समय आनंद की प्रतीति होती है, वो ईश्वर के सानिध्य में होती है। तो इसलिए क्या कहा? उसका नाम वो आनंद है। उसका एक नाम हम लोग जानते हैं, बहुत लोग चर्चा करते हैं कि सगुण है कि निर्गुण है। बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया। ईश्वर के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनसे वो रहित है, और बहुत से ऐसे गुण हैं जिनसे वो सहित है। तो जिन गुणों से वो सहित है, उस कारण से वो सगुण है। जिन गुणों से वो रहित है, जैसे कि वो जन्म नहीं लेता है, उस जब जन्म नहीं लेता है तो उसका आकार भी नहीं है, निराकार है। और इसके अतिरिक्त जो है वो किसी भी प्रकार से जब अनादि है तो अनंत भी है। तो जो जो गुणों से वो रहित है, इसलिए वो निर्गुण है। जिन जिन गुणों से उसके अंदर में युक्त है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वा और सर्वाधार है, ये सब जितने भी हैं, तो जितने भी ऐसे आपको वो मिले हैं जिनका प्रीफिक्स में स हो तो सगुण, और जिसके अंदर में न हो वो निर्गुण। बड़ा स्पष्टीकरण दिया कि ईश्वर ही सगुण और निर्गुण होता है। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है, और हमारे बड़े धर्माचार्य जो बहुत कुछ विद्वान भी हैं और बहुत कुछ जानते भी हैं, जानते हुए भी वो इस प्रकार का एक वो देते हैं नैरेटिव सामान्य जनता को। वो ये कहते हैं कि सगुण का अर्थ है साकार, निर्गुण का अर्थ है निराकार। मैं बंधुओं, आप सत्यार्थ प्रकाश के आलोक में इस समय इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, तो मैं पुनः निवेदन करता हूँ
कि ये जितनी भी मान्यताएं और परंपराएं हैं, इन भ्रांतियों से बाहर निकलना ही हमारा उद्देश्य है। नहीं तो इस सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करना, इसके बारे में व्याख्यान देना, आपका समय लेना, अपना समय देना, इसका कोई लाभ नहीं होगा। लाभ जब होगा कि जब इसको सत्य अर्थ का प्रकाश घोषित किया है ऋषि दयानंद ने, तो हम उसी लाइट में, जैसा कि पहले रमेश देशपांडे जी ने कहा, उसको इंग्लिश में सत्यार्थ प्रकाश को हमने कहा है द लाइट ऑफ द ट्रुथ। तो लाइट ऑफ द ट्रुथ जब होती है, जब हमारे सामने ट्रुथ अनकवर्ड होता है, नेकेड ट्रुथ होता है, तो वो बिल्कुल सत्य अर्थ होता है। तो सत्य अर्थ होता है तो वो दो नहीं हो सकते, सत्य हमेशा एक होता है। कोई ये कहे दो और दो चार भी हैं, दो और दो साढ़े चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं तो नजदीक तो है। तो नजदीक होना वो सत्य नहीं है, वो सत्य के निकट तो है लेकिन सत्य नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी दूरी है। तो सत्य होगा तो केवल एक बिंदु पे केंद्रित होगा। तो जब मैं सत्य प्रकाश की बात करता हूँ, एक शब्द से और आप लोगों का वो करा दूं परिचय। हम लोगों ने कहा है कि ये सृष्टि जो है शेष नाग पे टिकी हुई है। शेष क्या है उसके लिए भी कहा है सत्य प्रकाश भी ईश्वर का एक प्रकार से नाम है, कि जब भी ये सृष्टि के अंदर में इसकी स्थिति होती है तो वही करता है, इसकी भी है वो भी करता है। लेकिन जब प्रलय हो जाती है तो शेष क्या रहता है? रिमाइंडर, दिस होल रिमाइंडर ऑफ दिस होल यूनिवर्स इज द गॉड हिमसेल्फ। तो इसलिए उसको शेष भी कहा। तो अब जितनी भी हम उनको किस किस चीज के साथ में कहाँ कहाँ जोड़ते हैं, तो अब इसके अंदर में है, मैं लास्ट में अपने तक मैंने आपको 50 नामों से आपका परिचय कराने का प्रयास किया। और इसके अंदर में वो नाम है जिनको हम ट्रिनिटी के रूप में जानते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ट्रिनिटी है, सच्चित आनंद एक ट्रिनिटी है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर में हमने जितने भी 9 ग्रह की बात की, वो 9 के 9 की मैंने आपसे चर्चा की है। जितने 5 बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स है, मैंने उन पांचों की आपके सामने चर्चा की है। इसके अतिरिक्त हमने गणेश लक्ष्मी और सरस्वती जो ट्रिनिटी है उसकी भी बात आपके सामने की है। नारायण की बात की है जिसको हम विष्णु का वो मानते हैं पर्यायवाची। इसके अतिरिक्त भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, ये सारा भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो लगभग जितने हमारे ये प्रिवेलिंग टर्मिनोलॉजी है, जिसके साथ हमने किसी ना किसी आकृति को जोड़ के समझने का और दिमाग में याद करने का एक छवि बना के अभ्यास डाला हुआ है, आज सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से केवल और केवल मैंने आपको ये बताने का एक साहस किया है। और ये साहस नहीं है, एक प्रकार का दुस्साहस भी कह सकते हैं आप। क्योंकि जो प्रचलित मान्यता हैं, जो हमारे एक प्रकार से एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, उन एक्सेप्टेड नॉर्म के बारे में अगर कोई पाई जाए तो हर आदमी को सामान्यता एकदम समझ में नहीं आती है। कई दफे ये भी लोग बोलते हैं कि मालूम नहीं ये कहाँ से ढूंढ के लाए हैं। मैं आपको फिर एक बार बड़ी विनम्रता से बताता हूँ कि ऋषि दयानंद ने भी अपने कोई नेगेटिव नहीं बताए हैं। हम वेदों के ऊपर में श्रद्धा रखते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वेदों के ऊपर में श्रद्धा नहीं रखता। वेदों को सृष्टि का आदि ज्ञान बोलते हैं। और ये जितना कुछ मैंने आपको बताया है, आप स्वयं वेदों के अंदर में जाके किसी गुरु के माध्यम से वेदों का अध्ययन करके इन सब की पुष्टि कर सकते हैं। इन सब का कंफर्मेशन, कोरबोरेशन आपको वेदों के पढ़ने से स्वयं हो सकता है। तो मेरा ये सब सुनने के बाद में आपको केवल स्वाध्याय की प्रेरणा हो, आप उस सेल्फ स्टडी के बेसिस पे सत्य को जानने के लिए वेदों के निकट जाएं और किसी भी गुरु की कृपा लेके उसके आशीर्वाद स्वरूप उन वेदों को पढ़ने का प्रयास करें, तो आपको ये सारे जितने मैंने आपको नाम बोले हैं, ये उसके अंदर में वेदों में चर्चा मिल जाएगी। और इसके अंदर में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वेद जब शुरू में सृष्टि के अंदर में ऋषियों के माध्यम से ईश्वर ने प्रकाशित किए थे, उस समय तक ये दुनिया जो है नहीं बनी थी। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर में कोई सृष्टि का इतिहास नहीं है। इतिहास कहते हैं जो काम हो चुका है उसका वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो इसके अंदर में तो जो हैपनिंग से पहले हैपन हुआ है उसके अंदर में इतिहास कहाँ से हो सकता है? तो इसलिए कोई भी इतिहास के बात को हम वेदों में अगर ट्रेस करते हैं, ये एक प्रकार की गलत एनालॉजी है, इट इज इलॉजिकल। और जब ये लॉजिक जो है स्टैंड नहीं करता,
तो फिर हम लोगों को रिकंसिडर करना पड़ेगा कि जो हमारे अभी तक के सोचने का जो हमारा तरीका है, जो हमारा मोडस ऑपरेंडी है, उसके अंदर में कहाँ पे कोर्स करेक्शन करना है। अंत में इसमें केवल 3 परामर्श हैं, वो मैं बात करके आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं एक इसके अंदर में सत्यार्थ प्रकाश में ही जो उन्होंने कहा है सिनॉप्सिस में, उन्होंने कहा परमात्मा के असंख्य नाम हैं। 100 नाम तो उन्होंने इस सत्यार्थ प्रकाश में लिखने का प्रयास किया, जिसमें से 50 मैंने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि इतने से टाइम में इससे ज्यादा नाम मैं आपके सामने नहीं रख सकता था। लेकिन ये 50 भी एक प्रकार का ट्रेलर है जो आपको ये बता रहा है कि ईश्वर के असंख्य नाम है, और वो नाम कौन से हैं, क्योंकि ईश्वर व्यक्ति नहीं है। ईश्वर एक प्रकार की अभिव्यक्ति है जो मेरे हृदय के अंदर में मेरे को आंख मीच के नजर आती है। तो इसलिए क्या है, जितने ईश्वर के गुण हैं वो सारे उसके नाम हैं, जितने ईश्वर के कर्म हैं वो सारे उसके नाम हैं, जितना उसका स्वभाव है वो सारे उसके नाम हैं, जितना उसका स्वरूप है वो भी सारे उसके स्वभाव। तो ये जो 4 बेसिक टेनेट्स हैं, ये ईश्वर के साथ में जब को रिलेट करते हैं, उनसे निकल के जो भी आता है वो ईश्वर का नाम है। दूसरी बात क्या है, एक उन्होंने इसके लिए एसिड टेस्ट बताया। उन्होंने कहा जहां पर भी सर्वज्ञ आदि की बात की जाए तो सर्वज्ञ तो केवल परमात्मा है, और अगर ये कहा जाए कि ये अल्पज्ञ है तो फिर समझ लीजिए वो जीवात्मा। तो बड़ी सीधी सी उन्होंने एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक टेस्टिंग की वो रॉड दे दी है, और ये इस प्रकार का एसिड टेस्ट है कि सर्वज्ञ की चर्चा हो तो समझ लीजिए ईश्वर की चर्चा है, अल्पज्ञ की चर्चा है तो वो केवल प्राणी मात्र की, जीव की चर्चा है। उसमें से मनुष्य की श्रेणी जरा थोड़ी सी अधिक है, बाकी प्राणियों को तो नैमित्तिक ज्ञान, केवल नित्य ज्ञान होता है, मनुष्यों को नैमित्तिक ज्ञान भी होता है, पास बुद्धि है जो विकसित हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो भक्ति जो है वो भज धातु से बनी है, तो इसलिए ईश्वर की भक्ति नहीं होती है, उपासना होती है। और उपासना के भी 3 चरण हैं जो हम सब जानते हैं। ईश्वर की पहले हम स्तुति करते हैं, ईश्वर की फिर हम उसके बाद में उपासना करते हैं, फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो स्तुति का अर्थ है, उन्होंने कहा कि स्तुति का मतलब है किसी के भी गुणों का यथावत वर्णन करना। इसमें एक क्वेश्चन दिया ऋषि दयानंद ने, जब हम किसी भी मनुष्य के पास जाके किसी इच्छा से जाते हैं, मान लीजिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो किसी विद्वान के पास जाएंगे, धन की इच्छा है तो धनवान के पास जाएंगे, किसी और चीज की इच्छा है तो जिसके पास वो होगी उसके पास जाएंगे। और जब हम उससे कुछ लेने की याचना करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा स्वभाव है कि उस व्यक्ति के गुणों का गुणगान करते हैं। अब जब हम गुणगान करते हैं तो उन्होंने कहा व्यक्तियों के गुण के अंदर गान में अतिशयोक्ति हो सकती है और सामान्यता होती है, क्योंकि मेरा स्वार्थ है उस व्यक्ति से लेना, और लेना का मतलब उसके मन को, उसकी आत्मा को प्रसन्न करना। प्रसन्न करने के लिए मुझको अतिशयोक्ति करनी पड़ती है। जितना उसके पास ज्ञान नहीं है, मैं उससे ज्यादा ज्ञानी के लिए उसको संबोधन करता हूँ। जैसे मैं पुलिस वाले के पास जाता हूँ तो उसको थानेदार साहब बोलता हूँ। मैं जानता हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं क्योंकि ये प्राणियों का स्वभाव है। उन्होंने कहा परमात्मा के तो इतने गुण हैं कि आप किसी गुण में अतिशयोक्ति कर ही नहीं सकते। आप जितना भी अधिक से अधिक बोलोगे वो सब परमात्मा के लिए एकदम से सुटेबल है। तो इसलिए परमात्मा के हर गुण की चर्चा करना वो उसकी स्तुति में आता है, क्योंकि उसके अंदर में कुछ भी आप बढ़ा के नहीं कर सकते। तो संपूर्ण ईश्वरों के इस सारे गुणों का यथावत वर्णन करना तो मनुष्यों के लिए है, और ईश्वर के लिए तो संपूर्ण गुणों का वर्णन करना उसकी स्तुति की श्रेणी में आता है। फिर जब हमको लगता है कि हम ईश्वर के ही संतान हैं, और हर संतान को अपने पिता के निकट बैठने का एक मन में चाव होता है, इस मनुष्य जीवन का भी मोक्ष जो है अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि हमको बार बार जन्म मिलता है केवल इसलिए कि हम अपने किसी भी प्रकार से रिपोर्ट कार्ड को सुधारें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। तो हमको क्या करना होता है, हम ईश्वर के तुल्य उसके गुणों को ग्रहण करने की अपने मन में इच्छा करते हैं। जब मैं ऐसा करता हूँ तो वो एक प्रकार की उपासना है। उपासना का मतलब है निकट बैठना। निकट बैठने का मतलब फिजिकल तो नहीं बैठ सकते, हम प्राणी जगत में एक दूसरे के निकट बैठते हैं, लेकिन निराकार के निकट कैसे बैठेंगे, वो तो कण कण में है। जहां भी हम बैठते हैं वहां भी है, हम नीचे भी है, हमारे ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। तो हम क्या करते हैं, केवल अपने मन में उसके उन गुणों को धारण करने का संकल्प करते हैं। तो वो क्या है, उसकी उपासना। उप का अर्थ है समीप, आसन का अर्थ है स्थित होना।
जब हम अपने मन में ये संकल्प लेते हैं इतने बड़े बड़े कि मैं ईश्वर के गुणों को धारण करूंगा, तो क्या मेरी सामर्थ्य है? क्योंकि मेरी सामर्थ्य तो अल्प सामर्थ्य। अगर वो सर्व केवल परमात्मा है, मेरी तो शक्ति बड़ी सीमित है, तो मुझको क्या करना होगा? किसी की सहायता लेनी होगी। तो ऐसे गुणों के लिए सहायता भी ईश्वरी की लेगी। जब हम उसके लिए सहायता की याचना करते हैं तो उसको प्रार्थना कहते हैं। तो बड़ा स्पष्ट उन्होंने इसका वो दिया कि हम केवल और केवल ईश्वर की ही स्तुति कर सकते हैं, ईश्वर की ही उपासना कर सकते हैं और ईश्वर को ही प्रार्थना करते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ जो परमात्मा है उसी की होती है, और उसी के जब उपासना करते हैं तो उसके तुल्य बनने का प्रयास अपने मन में संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। तो इसके अंदर में उन्होंने कहा है कि भक्ति जो शब्द है, मैं आप लोगों से फिर विनम्रता से निर्भर कर रहा हूं, हम कहते हैं हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान निराकार है, संपूर्ण ऐश्वर्य का है, आप उसकी किसी भी अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते। कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो हम उसको दे सकते हो, क्योंकि हमारा तो जो कुछ भी है वो सब उसका दिया हुआ है। इसलिए अपने मन में हम ये भ्रम पाल ही नहीं सकते। तो इसलिए बताया गया है कि ये भज धातु से जो शब्द भक्ति है, ये भक्ति केवल साकार की हो सकती है। आप किसी भी मनुष्य की, प्राणी की कर सकते हैं, पशु की कर सकते हैं, पक्षी की कर सकते हैं। चींटी को आटा दे रहे हैं, वो भी एक प्रकार से उसकी भक्ति हो रही है। भक्ति क्यों हो रही है? कि आपने अपने साधनों को उसके और अपने बीच में विभक्त कर दिया है। विभक्त का मतलब है डिवीजन। आपकी जेब में 10 रुपए थे, आपने किसी को 5 रुपए दे दिए उसके अभाव की पूर्ति के लिए। तो क्या किया? आपके 10 रुपए जो है वो डिवाइड हो गए, 5 उसके पास चले गए, 5 आपके पास रह गए। ये क्या हो गया? संस्कृत में विभक्ति हो गई। और जब ये विभक्ति हुई आपके साधन की, तो उस व्यक्ति के प्रति आपकी भक्ति हो गई। जब इतने छोटे छोटे उदाहरणों से हमको स्पष्टीकरण मिलता है बंधुओं, तो हमारी बुद्धि इनको स्वीकार करती है। और साथ में उन्होंने एक बात और स्पष्ट कहा। हम अपने यहाँ पे है ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, महादेव जी की चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही स्वाभाविक है कि ये तीनों हमारे यहाँ पर कोई बहुत चक्रवर्ती पूज्य महाशय हुए हैं। चक्रवर्ती राजा रहे होंगे, अन्य अन्य गुणों से संपन्न रहे होंगे। उनके भी उस समय उनके माता पिता ने यही नाम रखे होंगे उनके गुणों के अनुकूल, तो उन्होंने उन्हीं के नाम ये रखे होंगे। तो ये जो नाम है, तो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, जब हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, रामायण आदि को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी ने देवों की स्तुति की, विष्णु जी ने स्तुति की, विष्णु जी ने शिव की स्तुति की, शिव जो है विष्णु को पूजते हैं, विष्णु शिव को पूजते हैं। तो क्या कह रहे हैं? ये सब प्रक्रिया क्या है? कि जितने भी हमारे ये पूज्य महाशय हुए हैं और जितने भी हमारे दानव हुए हैं, दैत्य हुए हैं, वो भी किसी ना किसी का वरदान लेते हैं। शिव जी ने वरदान दे दिया, वो भस्मासुर हो गया। इसी प्रकार से जितने भी साधारण मनुष्य हैं, ये सभी लोग जिसको भी पूजते हैं वो केवल ईश्वर को पूजते हैं। तो इसलिए उन्होंने नकारा नहीं है कि ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं हुए हैं, हुए हैं। विष्णु जरूर हुए हैं, शिव हुए हैं। कैलाश पर्वत आज भी हम जानते हैं मानसरोवर वहीं पर है। तो एक स्थान है जो उस सारे क्षेत्र के स्वामी रहे होंगे, वो शिव उनका नाम रहा होगा। इसीलिए उनका शिव धनुष, विष्णु धनुष, इन धनुषों की हमारे यहाँ चर्चा होती है। तो ये सब जो चीजें हैं, ऋषि जानन ने इनको ये नहीं कहा कि ये सब काल्पनिक है, उन्होंने कहा ये सब है, लेकिन काल्पनिक इनके साथ में अर्थ जोड़ दिए गए हैं। और एक बात उन्होंने और कही है जो भी थोड़ी लकीर से हटके है, कि सामान्यतः हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ का मतलब जितने भी पुराण हैं, वेदों में और पुराण में एक अंतर है जो मैं आप लोगों को चलते चलते बता देता हूँ। वेद ईश्वर ने बनाए हैं और जितने भी पुराण हैं वो केवल मनुष्यों ने बनाए हैं। बाद में जितने भी विद्वान मनुष्य हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मत का प्रचार करने के लिए कोई एक पुराण बनाया, दूसरे व्यक्ति ने कोई दूसरा बनाया। 108 पुराणों की रचना हुई है, इसका मतलब 108 व्यक्तियों ने अपने मत को, वेदों को पढ़ के कुछ अपने मत को पुराणों के रूप में संग्रहित किया। तो पुराण है तो मनुष्य का बनाया हुआ, मैन मेड। वेद है तो गॉड मेड। तो अब इसके अंदर में कौन सुपीरियर हो सकता है? क्या उनके बीच में कोई कंपैरिजन भी हो सकता है? ये बंधुओं आप लोगों को विचार करना है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, उनके अंत में सब में एक मंगलाचरण करने का एक प्रैक्टिस है। मंगलाचरण का मतलब है समाज का मंगल होवे, वो सबसे अंत में लिखते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं इसकी आवश्यकता क्या है?
ईश्वर तो सदैव मंगलकारी है, इसलिए जब ग्रंथ में जो बीच शुरू में लिखा वो भी मंगलकारी है, जो मध्य में लिखा वो भी मंगलकारी है, सबसे अंत में ही केवल हम मंगलकारी की बात करें तो ये तो अधूरी बात हो गई। उन्होंने कहा वेदों में तो कहीं मंगलाचरण नहीं है, मंगलाचरण मिलेगा तो वो केवल और केवल हमारे मनुष्यकृत पुराणों के अंदर मिलेगा। तो इतने सारे स्पष्टीकरण को देख मैंने आज का विषय आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया। मेरी बहुत सी बातें आपको लॉजिकल तो जरूर लगी होंगी, लेकिन थोड़ी सी ये लगी होंगी कि लाइन से हटके हैं, थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, वास्तव में एबनॉर्मल। क्योंकि जब सत्य हमारे सामने आता है तो उसके स्वरूप को देखना हर व्यक्ति की सामर्थ्य में नहीं होता। और आज हम सारे मनुष्य जाति का ये स्वभाव बन गया है कि हम सत्य को जानने की इच्छा तो बहुत रखते हैं, लेकिन सत्य का सामना करने की सामर्थ्य हम में से अधिकांश लोगों में नहीं होती है। जिनमें होती है वो ऋषि दयानंद जैसा एक युग प्रवर्तक होता है, और वही उसने उस सत्य को ही लोगों के सामने प्रचारित करने के लिए अपने जीवन का मूल्य दिया। क्योंकि समाज के उन्हीं व्यक्तियों ने जिनके कल्याण के लिए उसने सत्य अर्थों का प्रकाश करने का प्रयास किया, उन्हीं लोगों ने उसके प्राण हर लिए। तो एक ऐसे युग पुरुष की चर्चा करते हुए मैं उसके प्रथम समोल्लास का वर्णन आपके सामने करके अपने को कृतकार्य मानता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ओम। धन्यवाद गुरुदेव गुप्ता जी, you have brought out the message of Satya Prakash so clearly. God is Anadi, Sarvavyapi, Sarvajna, Nirakar, and merciful. I mean, I don't know how to call it merciful or what is the best thing to describe. So if anybody has any questions, can you please come up quickly? Yeah. This is supposed to be the last lecture in this series. Yeah. It depends on Ramesh Bhaisav and his associates and all the persons. If we want to extend it, I have no problem. But No, it all we will go further on this. We'll talk about it. Yeah. So, just to close this, so first of all, we want to thank you all for joining this very important series. It's not limited to Arya Samaj only. It is for everybody to understand the true nature of we call God. We have our own ways of worshipping God, but the ultimate truth, Dayananda Saraswati has explained so well, and that has to be spread. So I think we will work on that with Ravidev Gupta ji and see how to take further. We'll come back to you, any support we need. We will also think about having more lectures, a couple of more lectures on this to take this topic further. Because there is Om-based meditation, they talk about it. I mean, to understand the true meaning of Om, one has to involve in Om. One should become part of Om. One becomes part of Om. And that one has to have that awareness, through yoga or yogic discipline, I should say, not necessarily yoga, but yoga discipline. So these are how to link up these whole philosophies. One side is you have yoga philosophy, we have um, Om philosophy, Om meditation. So what are the ways of reaching there? The concepts are clear. How do we reach there? How to go back? So that is what the issue is for subsequent lectures. So we'll get back to you. In the meantime, I want to appeal against that Gupta ji is doing great work. We want to support it further, take it further, especially research in Vedas, and reach out the real message of Vedas to the rest of the world. I think that is the most urgent need as I see it. And your thoughts are welcome. So I stop here. And Gupta ji, thank you so much. I don't know how to express our gratitude to you for sharing your knowledge, bringing the message of Dayananda Saraswati ji to all of us. I don't know how to thank you all. Thank you. I only wish that I have not offended anybody in the No, least. I don't. I mean, those who do worship Murti, the basic concept even in Murti, we just go beyond that. You see, it is not. You don't stop there. It is. You have to go beyond that. How to go beyond all this?
conventional concepts of worship. How do you go to the real worship? He says that's what the whole thing, whole philosophy, whole this effort is. And I think we should That continue this effort further. Yeah. I only mean to say that I have not offended, and I don't have to defend myself either. Yeah. एंड आई फील कि जितने भी लोगों ने सुना है बहुत पेशेंटली धैर्य से सुना, मैं सबका अभिनंदन भी करता हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबडी whosoever has given me a patient listening. I am really indebted to all those persons who have now a glimpse of what Swami Swadanand Ji has tried to put in writing before he left this world. So, thanks to everyone. Our sincere gratitude to this US-based organization, Universe of Spirituality Group, Universe of Spirituality Group of Mr. Ramesh Deshpande and his team. So we are indeed indebted to these people that they were in a position to organize this beautiful lecture series on Satyarth Prakash. And of course, we express our sincere gratitude to R.A. Ravi Dev Gupta ji that he has been able to spare his time out of his busy schedule. And our sincere thanks to all the participants also. See, there are organizers, there is a speaker, but we have to have audience also to make it a successful one. And there have been participation from US as well as from India. और ये हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये लेक्चर सीरीज कंडक्ट की और जिसके हम भी पार्टिसिपेंट बने। शांति पाठ से पहले केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा रमेश भाई साहब ने मेरे परिचय में कई बार बताया है, पहले भी बताया है, आज भी बताया है, मेरा पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित है और मेरे परिचय में भी मालूम है कि मैं बहुत से संगठनों के माध्यम से समाज की सेवा करता हूँ। तो मेरी ये वास्तव में ये रहती है इच्छा कि समाज के जितने भी लोग अधिक से अधिक इन विषयों में अगर सहयोग करें तो हम समाज की विभिन्न संगठनों के माध्यम से सेवा कर पाएंगे। तो रमेश भाई साहब ने भी इसके लिए कहा है, एंड आई जॉइन हैंड्स विद हिम एंड आई जॉइन माय वॉइस विद हिम आल्सो कि हूसोएवर इफ उसको ईश्वर से ऐसा मन में प्रेरणा हो तो वो रमेश जी को कांटेक्ट करें और जो भी साधन वहाँ पे वो इकट्ठे करना चाहें वो हम इन्हीं संगठनों के माध्यम से समाज की सेवा में लगाएंगे। एंड एवरी सॉर्ट ऑफ offering, every sort of contribution is welcome. Om Dhyau Shantirantariksam Shanti Prithvi Shanti Rapa Shanti Roshadaya Shanti Vanaspataya Shantir Vishve Deva Shantir Brahma Shanti Sarvam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Reti Om Shanti 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 Om